ایک دفعہ کا ذکر ہے، شہزادی گل صنوبر محل کے باغ میں جھولا جھول رہی تھی کہ اچانک اس کی نظر ایک نہایت خوبصورت پرندے پر پڑی۔ اس کا رنگ سنہری تھا اور سر پر ایک چھوٹا سا تاج بھی تھا۔ وہ درخت پر بیٹھا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کی خوبصورتی دیکھ کر شہزادی گل صنوبر دنگ رہ گئی اور جھولے سے اتر کر اس درخت کے نزدیک آ گئی جس پر وہ خوبصورت پرندہ بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے پرندے سے کہا، تم کتنے خوبصورت پرندے ہو، آؤ میرے پاس آؤ، میں تمہیں کھٹی میٹھی رس بھری کھلاؤں گی۔ اس کی بات سن کر پرندے نے کہا، میرا دل تو چاہ رہا ہے کہ تم جیسی اچھی اور خوش اخلاق لڑکی کے ساتھ کچھ دیر بیٹھ کر باتیں کروں اور کھٹی میٹھی رس بھریاں کھاؤں، مگر میں تو نگر نگر کی سیر کرنے کے لیے نکلا ہوں، اس لیے چلتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے پر پھڑپڑائے اور اڑ گیا۔ شہزادی صنوبر کو بہت حیرت ہوئی کہ وہ خوبصورت پرندہ انسانوں کی طرح باتیں کرتا تھا۔ وہ بھاگ کر بادشاہ کے پاس آئی اور بولی، ابا حضور، مجھے وہ بولنے والا پرندہ چاہیے، ابھی اسی وقت۔ پہلے تو بادشاہ کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا کہ شہزادی صنوبر کیا کہہ رہی ہے، مگر جب کنیزوں نے بتایا کہ درخت پر ایک سنہری پرندہ آ کر بیٹھا تھا اور انسانی زبان میں کچھ کہہ رہا تھا، تو بادشاہ نے کہا، بیٹی، میں نے کہانیوں میں تو سنا ہے کہ پرستان میں کچھ ایسے پرندے بھی ہوتے ہیں جو انسانوں کی طرح باتیں کرتے ہیں۔ وہ پرندہ پرستان سے ہی آیا ہوگا، ہو سکتا ہے وہ کل پھر آئے۔ اگلے روز شہزادی صنوبر انتظار ہی کرتی رہی، مگر وہ پرندہ دوبارہ نہیں آیا۔ اس کی فکر میں شہزادی نے پورے دن نہ کچھ کھایا اور نہ کچھ پیا۔ جب رات ہوئی تو وہ بالکل ہی نا امید ہو گئی اور ملکہ کے گلے لگ کر رونے لگی۔ ملکہ نے اسے مختلف طریقوں سے بہلانے کی کوشش کی، مگر اس عجیب و غریب پرندے کے خیال کو شہزادی صنوبر کے دل سے نہ نکال سکی۔ اپنی پیاری بیٹی کی اداسی دیکھ کر بادشاہ بھی پریشان ہو گیا تھا۔ جب 2-3 روز گزر گئے تو ملکہ اور بادشاہ کی تشویش میں اضافہ ہو گیا۔ شہزادی گل صنوبر ان چند روزوں میں نہایت کمزور ہو گئی تھی۔ انہیں یہ ڈر تھا کہ وہ کہیں بیمار نہ پڑ جائے۔ بادشاہ کے ذہن میں ایک خیال آیا۔ اس نے سوچا کہ وہ شہزادی کے ساتھ پرستان میں جا کر اس پرندے کو تلاش کر کے اپنے ساتھ لائے تاکہ اسے پا کر وہ خوش ہو جائے۔ یہ بات اس نے جب ملکہ کو بتائی تو وہ بولی، اگر آپ اس سفر پر روانہ ہوئے تو حکومت کون چلائے گا؟ اس پرندے کو تلاش کرتے کرتے نہ جانے کتنے دن لگ جائیں۔ اس دوران رعایا کی خبر گیری کون کرے گا؟ آپ ایسا کریں، یہ اعلان کروا دیں کہ جو بھی پرستان سے عجیب و غریب پرندے کو لے کر آئے گا، اس سے بہت سی اشرفیاں انعام میں دی جائیں گی۔ بادشاہ کو ملکہ کی یہ تجویز پسند آئی اور اس نے یہ اعلان کروا دیا۔ انعام سن کر بہت سے لوگ قسمت آزمانے کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ پرستان بہت دور تھا اور اس کا راستہ بھی خطرناک تھا۔ راستے میں بہت سے پہاڑ تھے، دریا تھے، جنگل تھے اور جنگلوں میں خونخوار درندے تھے۔ بہت سے لوگ اونچے اونچے پہاڑوں پر نہ چڑھ سکے، بعض دریا کو عبور نہ کر سکے۔ کچھ لوگ جنگل میں درندوں کو دیکھ کر ہمت ہار بیٹھے۔ غرض یہ کہ کوئی بھی پرستان سے اس پرندے کو نہ لے کر آ سکا۔ ایک روز 2 نوجوان بادشاہ سے ملنے محل آئے اور بادشاہ سے پرستان جانے کی اجازت طلب کی تاکہ وہاں سے اس پرندے کو ڈھونڈ کر لا سکے۔ بادشاہ نے انہیں اجازت دے دی اور تاکید کی کہ وہ اس پرندے کو لے کر جلد سے جلد آنے کی کوشش کرے، کیونکہ شہزادی گل صنوبر کی حالت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی۔ دونوں نوجوان اپنے اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر اس خطرناک سفر پر روانہ ہو گئے۔ ان میں سے ایک کا نام شہریار تھا اور وہ ایک لکڑہارے کا بیٹا تھا۔ دوسرے نوجوان کا نام سلیم تھا اور اس کا باپ ریشمی کپڑوں کا تاجر تھا۔ سلیم چونکہ ایک دولت مند تاجر کا بیٹا تھا، اس لیے اس میں بہت غرور تھا۔ اس نے شہریار سے کہا، تم جا کر اپنے باپ کے ساتھ جنگل سے لکڑیاں کاٹو اور انہیں گدھے پر لاد کر شہر میں بیچو۔ تم ان چکروں میں کہاں پڑ گئے ہو؟ شہریار نے اس کی بات کا برا نہیں منایا اور مسکرا کر بولا، لکڑیاں تو میرے ابا کاٹ لیں گے، تم اس کی فکر چھوڑو۔ ہمارے بادشاہ سلامت اور ان کے ملکہ بہت اچھی ہیں، وہ دونوں اپنی رعایا کا بہت خیال رکھتے ہیں۔ ان لوگوں کے اچھے سلوک کی وجہ سے ہمارے ملک میں شیر اور بکریاں ایک گھاٹ پانی پیتے ہیں۔ اپنے بادشاہ سلامت کی وجہ سے ہم لوگ بہت خوشحال ہیں۔ اب ان پر وقت پڑا ہے تو ہمارا بھی فرض ہے کہ ہم ان کی مدد کریں۔ مجھے انعام کا لالچ نہیں ہے، میں تو بس یہ چاہتا ہوں
कि वो परिंदा जल्द से जल्द लाकर बादशाह सलामत के हवाले कर दूं, ताकि इनकी बेटी खुश हो जाए और हमारे बादशाह और मलका की फ़िक्र दूर हो जाए। वो बातें करते करते काफ़ी दूर निकल आए थे। इस वक्त वो एक मैदान में थे जिसमें कहीं कहीं बड़े बड़े दरख्त भी नज़र आ रहे थे। एक दरख्त के नीचे इन्होंने एक बूढ़ी औरत और उसके शौहर को देखा। शहरयार और सलीम को आता देखकर बूढ़ा शख्स खड़ा हो गया और इन्हें रुकने का इशारा किया। ओ बूढ़े शख्स, तेरा दिमाग ख़राब है जो हमारा रास्ता रोक रहा है, सलीम ने नायत गुस्से से कहा और घोड़े पर बैठे बैठे झुककर एक हाथ से धक्का देकर बूढ़े को एक तरफ हटा दिया और घोड़ा भगाता हुआ आगे निकल गया। बेचारा बूढ़ा ज़मीन पर गिर पड़ा। इसे गिरता देखकर इसकी बीवी चीख चीख कर दहाइयाँ देने लगी और इसे ज़मीन से उठाने की कोशिश करने लगी। ये देखकर शहरयार जल्दी से घोड़े से नीचे उतरा, बूढ़े को ज़मीन पर से उठाया और बोला, मोहतरम बुजुर्ग, आपको चोट तो नहीं आई? बूढ़ा करहाता हुआ खड़ा हो गया और बोला, बुरा हो इस बदबख्त का, मुझे पहले से पता होता वो ऐसा है तो मैं कभी इसे अपनी मदद के लिए नहीं रोकता। इसे छोड़िए, मुझे बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? शहरयार ने नायत नरमी से कहा, बेटा हम सुबह से घर जाने के लिए निकले हुए हैं। मैं अपनी बीवी के साथ अपनी बहन के घर से आ रहा हूँ। हमारा गांव यहाँ से चंद किलोमीटर के फासले पर है। हम बूढ़े हैं, चल चल कर बुरी तरह थक गए हैं, भूख से बुरा हाल है। घर पहुँचें तो खाना खाएं और आराम करें। तुम्हारे पास घोड़ा मौजूद है, तुम्हारी मेहरबानी होगी अगर हमें गांव तक पहुँचा दो। बूढ़े की बात सुनकर शहरयार ने अपना खाना निकाल कर इन दोनों को दिया। यह खाना इसकी माँ ने इसके साथ कर दिया था ताकि सफ़र के दौरान इसे भूख लगे तो वो इसे खा ले। जब वो दोनों खाना खा चुके तो शहरयार ने दोनों को घोड़े पर सवार कराया और ख़ुद घोड़े की बांग पकड़कर तेज़ तेज़ कदमों से इनके गांव की सिमत रवाना हो गया। दोनों मियाँ बीवी इसे दुआएं दे रहे थे। शाम होते होते वो एक गांव में पहुंच गए। इसी गांव में इन बूढ़े मियाँ बीवी का घर था। घर पहुंचकर बूढ़े और इसकी बीवी ने बड़े इसरार से शहरयार को इस बात पर आमादा कर लिया कि वो अगले रोज़ तक इनके घर में ही ठहरे, क्योंकि रात सर पर थी और रात का सफ़र यूं भी मुनासिब नहीं था। शहरयार ने इनकी बात मान ली। रात खाने के बाद बूढ़े ने कहा, अब नौजवान तुम बताओ, कहाँ से आ रहे हो और कहाँ जा रहे हो? जवाब में शहरयार ने इसे पूरी कहानी सुना दी और बताया कि वो बोलने वाले परिंदे की तलाश में परिस्तान जा रहा है ताकि उसे ले जाकर शहजादी गुलसनोबर के हवाले कर सके। इसके बाद सुनकर बूढ़ा सोच में पड़ गया। कुछ देर बाद इसने कहा, परिस्तान में कुछ ऐसे नायाब परिंदे भी होते हैं जो इंसानों की तरह बातें करते हैं, मगर इन्हें वहाँ जाकर तलाश करना पड़ेगा। परिस्तान जाने के दो रास्ते हैं। एक रास्ते पर खतरा बहुत ज़्यादा है और इसका रास्ता भी बहुत तवील है। दूसरा रास्ता करीब का रास्ता है। अगर घोड़ा तेज़ रफ्तार हो तो 1 घंटे में वहाँ पहुँचा जा सकता है। इस रास्ते में कोई खतरा भी नहीं है। अगले रोज़ शहरयार सुबह सवेरे बेदार हो गया। बूढ़े ने उसे परिस्तान का रास्ता अच्छी तरह समझा दिया। वो रवाना होने लगा तो बूढ़े ने अपने घर के पिछले हिस्से में लगे दरख्तों से बहुत सारे अमरूद तोड़कर इसे दिए और बोला, परिस्तान के परिंदे अमरूद बहुत शौक़ से खाते हैं। यह फल परिस्तान में नहीं होता है, इसलिए इनके तलाश में वो इंसानों की दुनिया में आते हैं। तुम ये अमरूद अपने पास रखो। मुझे यकीन है कि इनकी खुशबू वहाँ के परिंदों को तुम्हारी तरफ मतवज्जा कर देगी। हो सकता है इनमें से कोई ऐसा परिंदा भी हो जो इंसानों की तरह बातें करता हो। शहरयार ने अमरूद लेकर इसका शुक्रिया अदा किया और घोड़े पर सवार होकर वहाँ से रवाना हो गया। जिस रास्ते पर इसका घोड़ा दौड़ रहा था वो बहुत साफ़ सुथरा और हमवार था। वहाँ एक लंबी सड़क थी जिसके दोनों अतराफ में हरी हरी घास थी। कहीं कहीं फूलों के पौधे भी नज़र आ जाते थे। वो बहुत जल्द परिस्तान पहुँच गया। वो परिस्तान में दाखिल हुआ तो चारों तरफ बहुत चहल पहल नज़र आ रही थी। परियां बाज़ारों में घूम रही थीं और मुख्तलिफ़ एशिया की ख़रीदारी में मसरूफ़ थी। शहरयार ने एक मैदान के चारों तरफ बहुत सारी परियों को देखा। वो करीब गया तो पता चला कि वहाँ 2 देवों की कुश्ती हो रही है और ये सब इन देवों की कुश्ती देखने के लिए जमा थे। इसका भी दिल चाहा कि देवों की कुश्ती देखे, मगर इसने वक्त ज़ाया करना मुनासिब ना समझा और बोलने वाले परिंदे की तलाश में चल पड़ा। इसकी नज़र दरख्तों पर लगी हुई थी ताकि इसे परिंदा नज़र आ जाए। चलते चलते वो एक बाग में पहुंचा। वहाँ पर बहुत सारे छोटे बड़े नहायत खूबसूरत परिंदे फ़िज़ा में उड़ रहे थे। वो सब अपनी सुरीली आवाज़ में चहचहा रहे थे।
मगर इनमें से कोई भी ऐसा नहीं था जो इंसानी ज़ुबान में बातें कर रहा हो। शहरयार को मायूसी तो हुई, मगर इसने हिम्मत नहीं हारी। इसने घास पर बैठकर अमरूद को काटा, अपने सामने एक कपड़े पर बिछा कर रख दिया। अमरूद की खुशबू से जितने भी परिंदे थे वहाँ आ गए और अपनी नन्ही नन्ही चोंचों से इन्हें खाने लगे। ओ भाई, परिंदों का क्या हाल है, इसने कहा, मगर किसी ने भी इसके बात का जवाब नहीं दिया। शहरयार समझ गया कि इन परिंदों में कोई ऐसा नहीं है जो इंसानों की तरह बोलता हो। अमरूद की काजिशें ख़त्म हो गईं तो सब खुशी से चहचहाते हुए उड़ गए। अचानक एक सुनहरे पुरों वाला परिंदा फिजा से उड़ता हुआ आया और शहरयार के सामने बैठकर बोला, अफसोस, मुझे आने में देर हो गई, सारे अमरूद तो ख़त्म हो गए। शहरयार इस सुनहरे परिंदों को इंसानी ज़बान में बोलता देखकर खुशी से बाग बाग हो गया। इसने एक नरम सा अमरूद निकाल कर इस परिंदे के सामने रखा और बड़े प्यार से बोला, प्यारे परिंदे, फ़िक्र ना करो, मेरे पास और भी अमरूद मौजूद हैं। ये सुनकर परिंदा फुदकता हुआ इसके पास आकर बैठ गया और मज़े से इसका दिया हुआ अमरूद खाने लगा। क्या तुम मेरे साथ इंसानों की दुनिया में चलना पसंद करोगे? आखिर शहरयार ने अपने मतलब की बात कह ही दी। क्यों नहीं, परिंदे ने जल्दी से कहा, मुझे वहाँ रहना बहुत अच्छा लगता है। वहाँ अमरूदों के बहुत से बाग हैं, मुझे अमरूद खाना बहुत पसंद है। अगर मैं तुम्हारे साथ चलूँ तो तुम मुझे पिंजरे में तो नहीं रखोगे? मुझे पिंजरे में बंद होकर रहना बिल्कुल पसंद नहीं। मैं तुम्हारी तलाश में बहुत दूर का सफ़र तय करके आ रहा हूँ। हमारे बादशाह की बेटी तुम्हें याद कर करके हलकान हो गई है, इसने खाना पीना भी छोड़ दिया है। मैं तुम्हें ले जाकर इसे शहज़ादी के हवाले कर दूँगा। वहाँ महल में तुम बहुत आराम से रहोगे। मैं इसे बताऊँगा कि वो तुम्हें पिंजरे में बंद ना करे। परिंदे ने कहा, मैं कुछ रोज़ पहले शहज़ादी से मिल चुका हूँ। मैं शहर शहर घूमने फिरने निकला था और इत्तेफाक से इस महल के बाग में मेरी शहज़ादी से मुलाकात हो गई। वो एक बहुत अच्छी और खुश इखलाक लड़की है। मैं बाखुशी इसके पास रहने को तैयार हूँ, परिंदे ने कहा और उड़कर शहरयार के हाथ पर बैठ गया। शहरयार का मकसद पूरा हो गया, लिहाजा वो वापसी के सफ़र पर रवाना हो गया। परिंदा काफ़ी ऊंचाई पर इसके घोड़े के साथ उड़ रहा था। अभी वो अपने मुल्क के हदूद में दाखिल हुआ था कि इसने सलीम को दूर से आते हुए देखा। इसकी हालत इंतहाई ख़राब थी। इसका जिस्म धूल मिट्टी से भरा हुआ था और कपड़े भी बहुत बुस्सीदा हो गए थे। इसका घोड़ा भी नहायत कमज़ोर हो गया था। शहरयार समझ गया कि परिस्तान जाने के लिए सलीम इस पर ख़तरनाक रास्ते पर निकल गया होगा, जिसके बारे में बूढ़े ने इसे बताया था। सलीम ने भी इसे देख लिया था। वो इसके करीब आया, दोनों एक दूसरे से मिले। शहरयार के पूछने पर सलीम ने बताया, मुझसे बड़ी गलती हुई जो मैं इनाम के लालच में इस सफ़र पर निकल खड़ा हुआ। परिस्तान के रास्ते में बड़े ख़तरात थे, मैं बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर भागा हूँ। शहरयार ने इसे अपनी कहानी सुनाई और बताया कि मैंने इन बूढ़े मियाँ बीवी को अपने घोड़े पर बिठाकर इनके गांव पहुँचाया था। बूढ़े ने खुश होकर इसकी मदद की, जिसकी वजह से वो बोलने वाला परिंदा हासिल करने में कामयाब हो गया। वो परिंदा तो तुम्हारे पास नहीं नज़र आ रहा, कहाँ है वो? सलीम ने बड़े इश्तियाक से पूछा। शहरयार ने आसमान की तरफ देखते हुए इशारा किया। सलीम ने देखा एक खूबसूरत सुनहरी परिंदा इनके सरों पर मंडला रहा है। इन्हें बातें करता देखकर परिंदे ने चिल्लाकर कहा, शहरयार जल्दी करो, ऐसा ना हो रात हो जाए। शहरयार ने सलीम को खुदा हाफिज़ कहा और अपने घोड़े को चलने का इशारा किया। सलीम ने इसे जाता देखा तो बोला, अगर मैं इन बूढ़े मियाँ बीवी के साथ बुरा सलूक नहीं करता तो मुझे भी बोलता परिंदा मिल जाता। शहज़ादी के पास ऐसे 2 परिंदे हो जाते। मैंने अपनी बद इखलाकी की वजह से इनाम हासिल करने का मौका ज़ाया कर दिया। मुझे अपने बुरे सलूक और गुरूर की सज़ा मिल गई है। ये कहकर वो अपनी राह हो गया। शहरयार महल पहुंचा तो सुनहरी परिंदे को देखकर शहज़ादी गुलसनोबर खुश हो गई। परिंदा भी बहुत जल्द इससे मानूस हो गया था। शहज़ादी जहाँ भी जाती वो इसके पीछे पीछे होता। शहरयार के कहने पर शहज़ादी गुलसनोबर ने वादा कर लिया था कि वो परिंदे को पिंजरे में नहीं रखेगी। शहज़ादी गुलसनोबर को खुश देखकर बादशाह और मलका ने भी सुख का सांस लिया। बादशाह ने शहरयार की हिम्मत और बहादुरी की बहुत तारीफ़ की। रात हो गई थी, इसलिए बादशाह ने शहरयार को घर नहीं जाने दिया और इसे शाही मेहमान खाने में ठहरने का हुक्म दिया। अगले रोज़ हस्बे वादा बादशाह ने शहरयार को बहुत सारी अशरफियाँ इनाम में दी। शहरयार ने इसका बहुत शुक्रिया अदा किया और अशरफियों का थैला अपने घोड़े पर रखकर महल से रुखसत होने लगा। शहज़ादी गुलसनोबर अपने सुनहरी परिंदे के साथ
उसे खुदा हाफिज़ कहने आई। शहरयार महल से निकला तो इसका रुख अपने घर की जानिब नहीं था। वो बड़ी तेज़ी से अपना घोड़ा दौड़ाता हुआ इस बूढ़े के गांव की जानिब जा रहा था, जिसकी मदद की वजह से वो बोलने वाला परिंदा हासिल करने में कामयाब हुआ था। वो इनके गांव में पहुंचा तो बेचारा बूढ़ा बीमार पड़ा था और इसकी बीवी इसके देखभाल में लगी हुई थी। बीमारी की वजह से बूढ़ा अपने काम पर भी नहीं जा सकता था। ऐसे में शहरयार की दी हुई रकम इनके बहुत काम आई। शहरयार को देखकर दोनों मियाँ बीवी खुश हो गए। शहरयार ने अपनी कामयाबी की खबर इन्हें सुनाई। फिर इसने बादशाह के दिए हुए इनाम में आधी अशरफियाँ बूढ़े के हवाले किए और बोला, आधे इनाम के आप भी हकदार हैं। अगर आप मेरी मदद ना करते तो मुझे वो परिंदा कभी ना मिलता। इतनी बहुत सी अशरफियाँ पाकर दोनों खुश हो गए और शहरयार को दुआ देने लगे। इसके बाद शहरयार अपने घर आया। इसने अपनी पूरी कहानी अपने माँ बाप को सुनाई और बादशाह से मिला हुआ आधा इनाम इनके हवाले किया। इसके माँ बाप तो खुशी से फुला नहीं समा रहे थे। वो इस बात पर बहुत खुश थे कि इनके बेटे ने अपने मोहसनों को फरामोश नहीं किया और इनाम का आधा हिस्सा इन्हें भी दिया था। इनाम में मिली हुई अशरफियों से शहरयार ने अपना कारोबार कर लिया। इसके बाप ने भी जंगल से लकड़ियाँ काट कर फ़रोख्त करना छोड़ दिया और कारोबार में अपने बेटे का हाथ बटाने लगा। थोड़े ही दिनों में इनका कारोबार खूब चमक उठा। यूँ एक लकड़हारे का बेटा कमज़ोर इंसानों से मोहब्बत और इनकी मदद करने के सिले में अपने माँ बाप के साथ एक खुशहाल ज़िंदगी गुजारने लगा। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।